Good evening, students. Today we are going to start Geography Chapter 5, Natural Vegetation and Wildlife. Previous video we covered up to types of vegetation. Previous video में मैंने आपको types of vegetation के बारे में बताया था. First topic था tropical evergreen forests. Second tropical deciduous forest. Third tropical thorn forest and scrubs. फोर्थ माउंटेन फॉरेस्ट एंड फिफ्थ मैंग्रोव फॉरेस्ट. तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे. टुडे वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स. फर्स्ट टॉपिक है मेडिसिनल प्लांट्स एंड सेकंड टॉपिक है वाइल्ड लाइफ. तो नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक मेडिसिनल प्लांट. इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स हर्ब्स एंड स्पीसीज फ्रॉम एंशियंट टाइम. सिंस 2000 plants have been described in Ayurvedic and at least 500 are in regular use. The World Conservation Union's Red List has named 352 medicinal plants, of which 52 are critically and 49 plants. The commonly used plants in India are. कौन कौन से प्लांट्स इंडिया में यूज़ किए जाते हैं? फर्स्ट है सर्वगंधा. सर्वगंधा यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर. इट इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया. सेकेंड है अर्जुन. द फ्रेश जूसी ऑफ लीव्स इज़ अ क्योर फॉर इरेज. इट इज़ आल्सो यूज टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर. अर्जुन जो होता है ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है. बबूल. Leaves are used as a cure for eye sores. Its gum is used as a tonic. बबूल को हम टॉनिक के रूप में भी यूज़ करते हैं. नीम has high antibiotic and antibacterial properties. नीम जो होता है वो हमारे एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ किया जाता है. तुलसी. इट इज़ यूज टू क्योर कफ एंड कोल्ड. तुलसी की जो पत्तियाँ होती हैं वो हम कफ एंड कोल्ड के लिए यूज़ करते हैं. एंड कचनार. इट इज़ यूज टू क्योर अस्थमा एंड एनी डिसीज़ के लिए. द बड्स एंड रूट्स आर गुड फॉर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम. जो भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए भी हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं. तो नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकेंड टॉपिक वाइल्ड लाइफ. Like its flora, India is also rich in its fauna. It has approximately 90,000 animal species. The country has about 2,000 species of birds. They constitute 13% of the world's total. There are 2546 species of fish, which account for nearly 12% of the world's stock. It also shares between 5 and 8% of the world's amphibians, reptiles and mammals. The elephants are the most majestic animals. Among the mammals, they are found in the hot wet forest of Assam, Karnataka and Kerala. One-horned rhinoceros are the other animals which live in and marshlands and Assam and West Bengal. Arid areas of the Ranu of Kutch and their Thar desert are the habitat for wind, ash and camels respectively. Indian vision. India is the only country in the world that has both tigers and lions. The natural habitat of the Indian known is the Gir forest in Gujarat. Tigers are found in the forest of Madhya Pradesh, the Sundarbans of West Bengal and the Himalayan region. Leopards too are members of the cat family. They are important among animals of prey. The Himalayas have a hardy range of animals which survive in cold. Ladakh freezing high altitude are a home to yak. The horned wild ox weighing around 1 ton. The Tibetan antipole, the Bharat. Furthermore, the ibex bear, snow leopard and rare red pun and found in certain pockets. जो वाइल्ड लाइफ होती है फ्लोरा की तरह इंडिया फाउना में भी बहुत रिच है.
इंडिया की 90,000 एनिमल्स स्पाइसेस, 2,000 बर्ड स्पाइसेस और 2,546 फिश स्पाइसेस हैं। Elephants are the most majestic animal among the mammals in a hot wet forest of Assam, कर्नाटका और केरला में पाया जाता है। वन ऑन रिनोसोरस जो स्वैपी और मार्शी लैंड में पाए जाते हैं, वे असम और वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। रन ऑफ कुछ में वाइल्ड एश और थार डेजर्ट में कैमल पाए जाते हैं। इंडिया वर्ल्ड का ओनली कंट्री है जहां टाइगर्स और लायंस दोनों पाए जाते हैं। लायंस को गुजरात के गिर फॉरेस्ट में और टाइगर्स को एमपी के फॉरेस्ट, वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस और हिमालयन के रीजन में पाया जाता है। हिमालय में बहुत से हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं जो बहुत अधिक कोल्ड में भी रहते हैं। हमने अपनी क्रॉप्स को बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट से सिलेक्ट किया है। हम बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट को क्या करते हैं, क्रॉप करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट, मैप। मैं आपको मैप के बारे में बताना चाहती हूँ। आप जो इस मैप को देख रहे हैं, इस मैप में 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेकंड है बर्ड सेंचुरी एंड थर्ड है नेशनल पार्क। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को है राउंड शेप में दिखाया गया रेड कलर से। जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनको रेड कलर से दिखाया गया राउंड शेप में। बर्ड सेंचुरी को जो है स्टार से दिखाया गया। हमारे इंडिया में बर्ड सेंचुरी कहाँ कहाँ पर है, इसको स्टार से शो किया गया है। एंड नेशनल पार्क को ट्रायंगल से दिखाया गया। हमारे इंडिया में नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पर है, जैसे कि फर्स्ट नेशनल पार्क है कान्हा, उसको आप मैप में देखेंगे तो मैप में दिखाई देगा ट्रायंगल कलर से, ट्रायंगल आकार का है। सेकंड है शिवपुरी, राजा जी, कॉर्बेट एंड कई सारे जो नेशनल पार्क हैं आपको ट्रायंगल से दिखाए गए हैं। तो आपको इस मैप की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और कहाँ कहाँ पर कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, नेशनल पार्क कहाँ पर है, आप इनकी प्रैक्टिस आप में जो प्लेन इंडिया का मैप लेकर उसमें फिल करेंगे इन सब चीज़ों को। नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट कि बर्ड लाइफ इन इंडिया इज़ कलरफुल। पीकॉक्स, ducks, cranes and pigeons are some of the birds inhabiting the forest and wetland of the country. We have selected our crops from a biodiverse environment. From the reserve of edible plants, we also experimented and selected many medicinal plants. The animal were selected from large stock provided by nature as a milk animal. They also provided as draught, power, transportation, meat and eggs. The fish provide nutritive food. Many insects help in pollination of crops and fruits trees and exerting biological control on such insects is harmful. Every species has a role to play in the ecosystem. Hence, conservation is essential, as has been mentioned earlier, due to excessive exploitation of plant and animal resources by human beings. The ecosystem has been disturbed. About 1300 plant species are endangered and 20 species are extinct. Quite a few animal species are also and some become extinct. The main causes for the major threat to nature are hunting by greedy hunters for commercially purpose, pollution due to chemical and industrial waste, acid deposit, introduction of alien species and reckless cutting of the forest to bring land under cultivation and habitation are also responsible for the imbalance. आपको मैंने इस मैप में इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है 18 बायो रिजर्व्स। 18 बायो रिजर्व्स में फर्स्ट है सुंदरबंस, सेकंड है गल्फ और मन्नार, थर्ड है नीलगिरी, फोर्थ है नंदा देवी, फिफ्थ है ग्रेट निकोबार, 6 मानस, 7
सिंपलीपल, फिर डिरबू एंड कांजीरंगा एंड पचमढ़ी, ये सब आपको 18 बायो रिजर्व्स के बारे में बता रही थी मैं, एंड एक्सेट्रा. फाइनेंशियली एंड टेक्निकल असिस्टेंट इज़ प्रोवाइडेड टू मैनी बॉटिकनल गार्डनर्स बाय द गवर्नमेंट सिंस. कौन कौन से थे? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट रिनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट have been introduced. 103 national park, 535 wildlife sanctuaries and zoological gardens are set up to take care of natural heritage. All of us must realize the importance of the natural ecosystem for our own survival. It is possible indiscriminate destruction of natural environment is put to an immediate end. हमारे नेचर को मेजर थ्रेट ग्रेडी हंटर्स जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए एनिमल्स को मारते हैं. हमारे फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स लिए. 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स को सेटअप किया. इनमें से 10 बायोस्फीयर्स को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया. कई बॉटनिकल गार्डन्स को गवर्नमेंट से फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दी जाती है. वे हैं कोल्ड डेजर्ट एंड पाना. थर्ड है प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट रिनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे कई इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया. फोर्थ है 103 नेशनल पार्क, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जूलॉजिकल गार्डन्स भी बनाए गए. तो आपके जो इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था वाइल्ड लाइफ. तो मुझे लगता है कि जो भी टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वाला चैप्टर अब यहीं पर कंप्लीट हो रहा. तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए, समझिए और जो भी क्वेश्चन आंसर्स मैं सेंड करती हूँ उनको अच्छे से लर्न करिए एंड